This is lecture 1 for the subject digital signal processing based on your unit 1. So in this lecture we are going to discuss about the introduction to digital signal processing, means what is DSP, okay, and what are the elements for the subject digital signal processing, okay, and what are the advantages and disadvantages of DSP. So we will discuss all 3 points one by one. Okay. So starting with the introduction to digital signal processing. So as the name suggests, okay, here is 3 terms. First one is the digital, second one is the signal, and third one is the processing. Means you have a digital signal and you want to process this signal. Okay. So अगर मैं बोलता हूँ कि DSP is the main your core subject for your branch, okay, because without DSP is nothing is possible, okay, because suppose मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ओके, एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये स्पीच सिग्नल ये आपके पास रिसीव हो रहा है, ओके. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग, ओके. जो मेरे पास ईयरफोन है, जो उसमें माइक अवेलेबल है, दैट इज़ उस माइक में मेरा जो स्पीच सिग्नल है वो क्या इनपुट जा रहा है. देन दिस माइक इज़ प्रोसेसिंग, okay, my speech signal through various step and it is receiving towards to your receiving device, okay. So now here we are processing digital signal, okay. So in previous lecture we have discussed about this portion signals. We also discussed some about digital, what is digital, why we prefer digital, why we prefer digital processor, various things. Now we will talk about the full term DSP, okay. So the digital signal processes takes signal like audio, voice, video, temperature, pressure, okay, some physical quantities, okay, and that have already been digitized and then manipulates them mathematically, okay. So obviously some signals are more, if I talk about the natural signals in the present in the world, so mostly are the most of the, or we I can use the term all the natural signals present in the world are analog signals, okay. So firstly you have to convert this signal into digital, then you have to process. So हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ओके. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्क्रीट टाइम, discrete frequency or other discrete forms so that the information can be digitally processed. Now आपको याद क्या रखना है कि जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल्स की कर रहे हैं, ओके. सो इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स देन इट इज़ ऑब्वियस कि जो हमें प्रोसेसर यूज़ करना होगा या जो भी प्रोसेसिंग के लिए मेथड होगा दैट शुड बी डिजिटली बेस्ड, ओके. सो रिक्वायर्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑब्वियसली क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो भी हमारे पास सिग्नल है वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग. सो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, okay. And if I talk about the digital, so there are two values only, 0 and 1, okay. So जो प्रोसेसर होगा, ठीक है, उसमें केवल 0 and 1 पे ही हमारे ऑपरेशन होंगे, क्लियर. Moving further,
अगर हम प्रोसेसर की बात करें, ओके क्योंकि अगर हमें कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करना है देन वी हैव रिक्वायर्ड अ प्रोसेसर. So based on this processor, a DSP contains 4 key components. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट वन द कंप्यूटिंग इंजन, सेकेंड वन इज द डेटा मेमोरी, थर्ड वन इज द प्रोग्राम मेमोरी एंड फोर्थ वन इज द इनपुट आउटपुट. ओके, सो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस जहाँ से हम इनपुट दे सकें, ठीक है, प्रोसेसर में, और वहाँ से हम आउटपुट. सो इनपुट आउटपुट पोर्ट एज यू हैव सीन इन माइक्रो कंट्रोलर. ओके, मोस्ट ऑफ देम यू वर्क ऑन माइक्रो कंट्रोलर. सो वहाँ पे क्या होता है, इनपुट आउटपुट हमारे पॉइंट्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं. ओके, सो इनपुट आउटपुट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटिंग इंजन, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सो आप उसमें क्या देखते हैं, CPU. ओके, सो आई थिंक सभी को CPU पता है, एंड CPU इज़ द मेन यूनिट जो हमारे सिग्नल को प्रोसेस करती है. सो कंप्यूटिंग इंजन मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, कैलकुलेशन एंड प्रोसेस बाय एक्सेसिंग द प्रोग्राम और टास्क. कहाँ से? फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटा मेमोरी. सो जो भी, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने लैपटॉप का, सो वी हैव CPU. नाउ प्रोसेसिंग द सिग्नल यू हैव रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा. ठीक है, सो इसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हमारी कहाँ पे स्टोर हो रही है, आपकी जो प्रोग्राम मेमोरी है वहाँ पे स्टोर हो रही है. और जो भी डेटा जिसको आपको प्रोसेस करना है वो कहाँ पे है, स्टोर इन डेटा मेमोरी. ठीक है, मेमोरीज के बारे में आपको पता है. ठीक है, so these two things required for processing the signal. Okay, so data memory, all of you know well about the data memory. Sorry, this store the information to be processed and works hand in hand with program memory. Obviously हमारे अगर हम आगे फर्दर स्लाइड में देखेंगे जो आर्किटेक्चर होता है CPU का, वो क्या होता है, दे आर टू वे प्रोसेसिंग. कि कभी हमें डायरेक्टली जो प्रोग्राम मेमोरी को डेटा चाहिए होता है वो डेटा मेमोरी से लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम मेमोरी, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है. जब भी आप कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए यू हैव टू राइट द प्रोग्राम कि आपको क्या प्रोसेस कराना है. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द योर माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको क्या पता होगा कि हम क्या करते थे, अपना प्रोग्राम उसमें बर्न करते थे. ओके, सो उसमें स्टोर कर देते थे. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम मेमोरी. दिस स्टोर द प्रोग्राम्स और टास्क दैट DSP विल यूज़ टू प्रोसेस, कंप्रेस और मैनिपुलेट द डेटा, जो भी हमें प्रोसेस कराना है वो सब. एंड लास्ट वन इज़ द इनपुट आउटपुट. ओके, सो जो इफ हमारे पास कोई प्रोसेसर है, ऑब्वियसली विदाउट इनपुट, जब इसमें इनपुट ही नहीं होगा तो ये कुछ ऑपरेट ही नहीं करेगा. सो यू हैव रिक्वायर्ड इनपुट एंड ऑब्वियसली यू हैव देयर इज़ आउटपुट, क्योंकि हमें जो भी अपना कंक्लूज़न निकालना है, या जनरल टर्म में कंक्लूज़न कैसे निकालोगे, आउटपुट देख के, डिस्प्ले करा के, रिकॉर्ड करके, वट एवर यू वांट टू डू. ओके, सो जो आपका डिजिटल सिग्नल जो प्रोसेसर है, ठीक है, अभी हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं क्योंकि दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसेसर. ओके, सो प्रोसेसर को अगर आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना है दैन यू हैव रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ओके, सो यहाँ पे एक फिगर मेंशन किया गया जिसमें ये 4 कंपोनेंट्स शो किए गए हैं. मेन यूनिट क्या है हमारा, कंप्यूटिंग इंजन. ओके, नाउ कंप्यूटिंग इंजन इंटरेक्टिंग विथ प्रोग्राम मेमोरी आल्सो एंड डेटा मेमोरी. ओके, सो अगर हम बोलें कि डेटा मेमोरी इट्स अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटिंग इंजन, इंटरनली बनाते हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है, सॉरी प्रोग्राम मेमोरी, और डेटा मेमोरी जिसमें हमारा डेटा रहता है जिसको हमें प्रोसेस कराना होता है. और ये कंप्यूटिंग इंजन किससे है, आउटर वर्ल्ड को इंटरेक्ट करने के लिए प्रोसेसर से वी हैव रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट. ओके, सो एक ब्लॉक डायग्राम के उससे रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे समझाया गया.
Okay, now further moving, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कोई भी हमारे अगर हम बात करें अपने प्रोसेसर की. ओके, यहाँ पे क्या थे की कंपोनेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एंड हियर आर द बेसिक कंपोनेंट्स. ओके, सो फर्स्ट इज दी योर सिग्नल, बिकॉज इस सिग्नल पे ही आपको सारे प्रोसेस करने हैं, इस सिग्नल को ही आपको प्रोसेस कराना है. ठीक है, सो मेन एलिमेंट तो आपका क्या हो गया, सिग्नल. और सिग्नल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में सफिशिएंट डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, देन दिस इज़ मस्ट. You should have knowledge about your signal. So I think in second year you have learned about the signal systems. So वो आपको पता होना चाहिए. Okay. Now as I told you in previous slide कि mostly जो real world में हमारे पास signal हैं, they are in the nature in the form of analog. So you have to convert this. So you have required analog to digital. Okay. Sometimes you have required at the end digital to analog converter. Suppose you want to results in the form of analog. Okay, so you have required the digital to analog converter. And main क्या है आपका, processor. Okay, क्योंकि process ultimately इसे ही करना है, इसे ही सारे mathematical manipulation करने हैं. Okay, so these are the some basic element जो हमारे digital signal processing के लिए required होते हैं. Okay, maybe in next semester you will learn about the digital communication. Okay, so वहाँ पे भी sometimes अगर आपको process करना है, okay, so sometimes you required operational amplifier, filters. Okay, so it's also the part of the DSP. Analog and digital, so I am skipping this converter about. Okay, moving further, advantages of the DSP. Okay, so obviously we know the advantages of the digital. Okay, so अगर हम digital present scenario में हम देखें तो we are focusing on the digital world. Okay, like our prime minister said कि digital India. So most of the जो हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे कर रहे हैं, डिजिटली बेस्ड कर रहे हैं, डिजिटल को प्रेफर कर रहे हैं. सो यू नो द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल. सो हियर्स आर सम एडवांटेजेस: बेटर सिग्नल क्वालिटी एंड रिपीटेबल परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्रोसेसिंग. मोर फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, फ्लेक्सिबल के क्योंकि आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो. सपोज आपने प्रोसेसर में जो प्रोग्राम स्टोर किया, नाउ यू वांट टू चेंज द एप्लीकेशन, सो जस्ट रीप्रोग्राम योर प्रोग्राम. ओके, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आ जाता है, और सॉफ्टवेयर पार्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं. सो दैट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, next one usually results in lower cost for equivalent performance. Okay, so obviously क्योंकि आप simulations पहले कर ले रहे हो, okay, वो सारी चीज़ें आप पहले कर ले रहे हो, then you are going to design your processor hardware part. Okay, so आपको पता है एनालिसिस करके कि क्या हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है और वो मिनिमम कितने कंपोनेंट से हमारा कंप्लीट हो जाएगा. Okay, so that's why it is called low cost. Ease of data storage, as you know कि हमारे पास इस current scenario में कि जो memory है वो कितनी easily available है low cost पे. Okay, so easily you can store the data. And time sharing. So this time sharing terms means you are using parallel processing. Okay, so suppose you want to हाई स्पीड, तो आप दो प्रोसेसर लगा दीजिए और दोनों को पैरेलली काम करा लीजिए. ओके, सो टाइम शेयरिंग इज अवेलेबल. ओके, सो टाइम शेयरिंग फॉर मेकिंग द स्पीड हाई.
Now, what are the disadvantages of DSPs? Obviously, जब हम सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, so we have required analog to digital converter, sometimes we have required digital to analog converter, okay, and some filters we have required. So इस requirement की वजह से क्या होता है, the complexity is increases, क्योंकि number of components क्या हो रहे हैं, increase हो रहे हैं. Okay, so जब number of, as I mentioned in first point, okay, moreover it requires ADC DAC module, also analyzer requires anti-aliasing filters. Okay, so due to use of this extra components complex of the DSP based hardware increases. So जो आपका हार्डवेयर पार्ट है वो sometimes it increases. Okay, एंड ड्यू टू यू आर इंक्रीजिंग द हार्डवेयर, ऑब्वियसली कंपोनेंट्स अगर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं तो पावर कंजम्पशन भी समहाउ इंक्रीज़ होगी थोड़ा बहुत इन कंपैरिजन अगर हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें. ओके, एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज लिमिटेड इन फ्रीक्वेंसी. ओके, सो these are the some advantages and disadvantages. So this is all about your first lecture. Okay, in next lecture we will talk about a little bit of digital systems. Okay, not in depth, because in second year you have learnt about already signal systems. So systems के बारे में आप पढ़ चुके हैं. So एक क्विक रिव्यू करेंगे in next lecture में. Okay, so thank you students.